دوستو السلام علیکم۔ حکیم محمد اصغر خان چانڈیا اپنے یوٹیوب چینل کی 12ویں ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میرا چینل کامیابی کی طرف آگے بڑھ سکے۔ دوستو میری کوشش ہوتی ہے مختلف جنگلی جڑی بوٹیاں، مرکبات اور جوہرات اور ان کے خواص فوائد پر اچھی سے اچھی اور معلوماتی ویڈیو بنا کر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں تاکہ آپ لوگ ان سے پورا فائدہ اٹھا سکیں۔ تو دوستو آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے عنبر۔ عنبر جعفر کے وزن پر عربی زبان کا لفظ ہے۔ لکھنے میں عین کے بعد نون آتا ہے لیکن پڑھتے اسے میم یعنی عنبر پڑھا جاتا ہے۔ عنبر کیا ہے؟ معروف و مشہور یہ ہے کہ سرمئی رنگ کا ایک خوشبودار مادہ ہے۔ یہ مادہ ایک بڑی جسامت والی مچھلی کے پیٹ سے نکل کر پانی کی سطح پر جمع ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے اس مچھلی کو عنبر کہتے ہیں جو عنبر کو نگلتی اور اگلتی ہے۔ یہ مچھلی اپنے بڑے سر کی وجہ سے دیگر مچھلیوں سے ممتاز ہوتی ہے۔ بعض اوقات اس مچھلی کا شکار کر کے اس کے پیٹ سے بھی عنبر نکال لیتے ہیں۔ چنانچہ امام شافعی سے منقول ہے کہ میں نے ایک شخص سے سنا ہے کہ میں نے سمندر میں اگا ہوا عنبر دیکھا جو بکری کی گردن کی طرح مڑا ہوا تھا۔ یہاں سمندر میں ایک جانور ہوتا ہے جو اس عنبر کو کھا لیتا ہے مگر عنبر اس کے لیے زہر قاتل ہوتا ہے، اس لیے نگلتے ہی مر جاتا ہے۔ پھر وہ مردہ جانور سمندر کی لہروں سے سیل پر آ جاتا ہے اور اس کے پیٹ سے عنبر نکال لیا جاتا ہے۔ عنبر مختلف قسم کا ہوتا ہے لیکن رنگت کے لحاظ سے بہترین اشب ہوتا ہے جو کہ سفید زردی میل اور بہت خوشبودار ہوتا ہے۔ اشب اس سیاہ رنگ کو بھی کہتے ہیں جس کی سفیدی غالب ہو۔ خوشبویات میں عمدہ اور قیمتی ہونے کے اعتبار سے مشک کے بعد عنبر کا دوسرا درجہ ہے۔ اس کی کئی انواع و اقسام ہیں جن میں سب سے اعلیٰ اشب رنگ کا نیلا، پھر زرد اور سب سے ادنی قسم کا رنگ ہوتا ہے۔ بعض ماہرین کی رائے ہے کہ سمندر میں ایک خاص قسم کا پودا اگتا ہے جس کو سمندری مخلوق کھا لیتی ہے اور بطور فضلہ کے خارج کر دیتی ہے۔ مشہور مسلم طبیب اور سائنسدان ابن سینا سے منقول ہے کہ عنبر سمندری مادہ ہے۔ بعض نے کہا کہ سمندری گھاس ہے، بعض نے سمندری پودا لکھا۔ ایک مشہور قول یہ ہے کہ مچھلی کی کائے ہے۔ عنبر پر جو تحقیق ہوئی وہ ان آراء سے بہت مختلف نہیں جو بہت علماء اسلام ظاہر کر چکے ہیں۔ چنانچہ امام زمخشری کے حوالے سے تاج العروس میں منقول ہے کہ عنبر سمندر کی سطح پر تیرتا ہوا مادہ ہے جس میں بعض اوقات پرندوں کی باقیات بھی ملتی ہے۔ امام زمخشری کی رائے کو اگر موجودہ تحقیقات کی روشنی میں دیکھا جائے تو ان کی رائے کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔
अंबर के मुतल्लिक एक तहकीक ये भी है कि अंबर दरअसल दरख्तों से बहने वाली राल और गोंद है। जब हशरात इसे खाने के लिए करीब आते हैं तो इसमें चिपक जाते हैं और हवा बंद होने के बायस हमेशा के लिए इसमें मुकीद हो जाते हैं। अजीम यूनानी महर हयातियात और फलासफर थियोफारेस्टस वो पहला शख्स था जिसने लगभग 400 साल कबल मसीह में अंबर के ख्वास के बारे में तहकीक से साबित किया कि अंबर ज़्यादातर इन सैली इलाकों में पाया जाता है जहां माजी में सनोबरी के जंगलात की बहुतात थी। बाद अज़ा ये दरख्त ज़ेरे आब आ गए और इनकी राल या गोंद दरख्तों से अलहदा होकर दलदली पानी और सैली पहाड़ों में फैल गई और मखसूस कीमियाई अवामिल के बाद नेम दैरवी शक्ल ठोस अंबरों में तब्दील हो गई जिन्हें गोताखोर और ताजरों ने तलाश करके फ़रोख्त करते हैं। अब तक गुफ्तगू का हासिल ये है कि अंबर एक खुशबूदार मादा है, मगर ये मादा खुद क्या है इसके मुतल्लिक मुख्तलिफ ख्यालात हैं। अंबर के मुतल्लिक तबीब और हकीमों ने जो कुछ तिब की किताबों में लिखा है इसका हासिल ये है कि अंबर गरम खुश्क है, मुफर्राए कल्ब है, मकावी दिमाग और मोरे के हरारत गुरेजी है, असाब को तकवीत बख्शता है। अंबर को ज़्यादातर आसाब और कल्ब के अमराज में इस्तेमाल किया जाता है। हरारत गुरेजी के ज़ऊफ़ के वक्त इसका इस्तेमाल तीर बेदफ साबित होता है। अंबर बूढ़ों के लिए बहुत मुफीद है। ज़ऊफ़ और ज़ख़म मैदा को ज़हल करने के लिए भी इस्तेमाल कराया जाता है। अंबर की ख़ास खसूसियात बतौर दवा ये है कि मोरे के बा मुहाफ़िज़ गुरेज़ी है, लेकिन आंतों और जिगर के लिए मुज़र है। अंबर से जो मुरक्बात तैयार होते हैं इनमें खमीरा अब्रेशम, हुब्बे अंबर ममोई और खमीरा गौ ज़बान अंबरी और हुब्बे अज़राकी अंबरी वगैरह वगैरह शामिल हैं। कुरान करीम में समंदरी अजायबात और मादनियात का ज़िक्र है, मगर नाम के साथ अंबर का ज़िक्र नहीं। अलबत्ता हदीस में अंबर का बतौर खुशबू ज़िक्र मौजूद है। अम्मा हज़रत ऐशा राज़ी अन्हो से पूछा गया कि क्या हज़रत मोहम्मद खुशबू लगाते थे, तो उन्होंने जवाब दिया, हाँ, मर्दाना खुशबू यानी मुश्क और अंबर की खुशबू। तो दोस्तों, अंबर के मैं कुछ नुस्खे भी अर्ज़ कर देता हूँ जो किसी अक्सीर से कम नहीं है। मिर्च सियाह 20 ग्राम, देसी अंडे की जर्दियाँ 20 अदद, जंजबील 20 ग्राम, अकरकरा 20 ग्राम, कस्तूरी 10 ग्राम, वर्क के सोना 3 ग्राम, वर्क के चांदी 6 ग्राम, अंबर 2 ग्राम, शहद छोटा 300 ग्राम। सबसे पहले कस्तूरी, वर्क के सोना, वर्क के चांदी, अंबर, इन चीज़ों को अर्क के गुलाब असल में 3 घंटे खरल करें। फिर बाकी अद्वियात में जंजबील, अकरकरा और अंडे की जर्दियाँ, मिर्च सियाह वगैरह इनका सफ़ूफ बनाकर इन सब को मिक्स करके शहद में मजून बना लें।
खुराक मकदार बराए तबीब की निगरानी में 1 ग्राम तक हो सकती है। दिन में 1 बार दें। 10 से 15 दिन काफ़ी है, लेकिन नीम गर्म दूध से दें। जवानी की गलत कारियाँ बुढ़ापे की जिस्मानी कमज़ोरी को दूर करती है। दिल, दिमाग, असाब, पट्टों, जिनसी कमज़ोरी के लिए बेहतरीन है। इसके साथ तबीब की राय के मुताबिक दूध और देसी घी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों, कुछ लोग असली और नकली अंबर की पहचान भी पूछते नज़र आते हैं और कहते हैं कि असली और नकली अंबर की क्या पहचान है। तो दोस्तों, मैं अंबर की असल और नकल की पहचान भी अर्ज कर देता हूँ। इसकी पहचान कुछ इस तरह से है। अंबर को शीशी में डालकर आग पर थोड़ा सा गर्म करें तो मोम की तरह पिघल जाए तो अंबर असली है, वरना नकली है। थोड़ा सा आग पर डालने से ही अंबर बेहतरीन खुशबू देना शुरू कर देता है। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक भी करें। तो दोस्तों, अगर कोई भी आप किसी भी वीडियो की फरमाइश करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स ज़रूर दें। मैं इंशाअल्लाह उसी जड़ी बूटी की वीडियो बनाकर अपलोड करूँगा। तो दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।